Hi guys, sorry I had to cut that connection. There was something off, so I joined in a new live session now. I hope I'm active. I'm audible. Can somebody please tell me if I'm audible right now and visible? Okay, so Bunny is saying that I'm audible. Uh, can one or two more of you confirm if I'm audible and visible? Okay, great. So it's 6:12. So should we start the session? Okay, done then. So as more of you get added, and see, most of my in the starting, we'll talk more about prelims, and it will be more concentrated on prelims because in 4 months you have your prelims scheduled. So and after that we'll take queries, and I'll love you all of you to ask what doubts you have and everything. So we'll discuss on that. So in the starting 15-20 minutes, I'll discuss on how I went about prelims and how I prepared and everything. Okay. So my name is Khushbu. I'm 2019 batch IS. I got rank 80 in 2019, and it was my second attempt. In both the attempts, luckily I cleared the prelims. In the first prelims, I cleared it with only half a number margin. But in my second prelims, I worked upon it and I cleared the prelims with more than 13 marks margin. So I'll tell on what I learned, how prelims has changed now. I have been in touch with the recent prelims paper also because my close ones are taking the paper again. So it has changed a lot in the last 3-4 years. So we'll talk about that, and we'll talk about if any strategy needs to be changed accordingly. So as you all know that only 4 months are left in the prelims. Okay, so there are two things to do about it. Many of you might have the questions that when should we start preparing for prelims exclusively. So, what I used to do was I used to take some mock test papers. Like, for example, you take 2-3 papers and you try to solve those papers right now. Okay, like in next 1 week. If you think that your marks are around 110, 120 consistently and very easily, then you might reduce your preparation time to 2 months. But I still feel 2 months is necessary given the prelims and everything. So I wouldn't say less than 1.5 and 2 months. So if you think that you're consistently scoring more than 110, 120, then you can reduce the preparation time to 2 months, 1.5 months. But if you think that your marks are staying between 90 to 110, which most of us do, most of us lie in this range, 90 to 110. So when prelims paper comes, if it comes from some uncomfortable zone, say more questions comes from medieval zone, more questions come from science and technology, then we fall on this side of the paper where we miss our prelims margin cut off by few marks. And I'm sure it would have happened with many of you. I hope Hindi is comfortable also. ओके सो सो आई एम श्योर आप बहुत लोगों के साथ ये हुआ होगा कि यू वुड हैव मिस्ड द मार्जिन बाय फ्यू मार्क्स. तो उससे और बुरा लगता है बिकॉज तब आपको लगता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर हो जाता. So I would say if you are lying between 90 to 110 marks, I would suggest to prepare exclusively for prelims for 2.5 to 3 months. This is what I used to do. I used to give 3 months exclusively to prelims. And after that also, if you think कि नहीं अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रीलिम्स में आते हो तो आपको लगता है कि आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं हुआ है. लक्ष्मीकांत आपने शायद 3-4 बार रिवाइज कर ली हो, बट देर आर सम सब्जेक्ट्स जो आपने ज्यादा रिवाइज नहीं किए हैं जिनको टाइम लगेगा. इन दैट केस
you can also start prelims preparation right now. So this is what I suggest. तो आप देख लो कि आप कौन से जोन में हो, इसमें ज्यादा प्रिपरेशन वाले, मीडियम प्रिपरेशन वाले, कम प्रिपरेशन वाले, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन का टाइम चूज कर लो. टुडे अराउंड 4 months आर रिमेनिंग, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट कम्स कि अब प्लान तो कर लिया कि 4 महीने पढ़ना है या 3 महीने पढ़ना है, अब करना क्या उन 3 महीनों में, राइट? सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आपका मिनिमम 3 अच्छा रिविजन्स प्रीलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स का होना चाहिए. ये मैं 3 रिविजन तब बोल रही हूं अज्यूमिंग कि यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड 2-3 times एवरी सब्जेक्ट. ओके, तो सिंस आपका ये प्रिपरेशन जो है, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं सपोज आई एम गिविंग 3 months टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, देन व्हाट आई विल डू इज फॉर 1.5 months आई विल कंप्लीट 1 रिविजन ऑफ प्रीलिम्स. 45 days में मैं एक रिविजन प्रीलिम्स का करती थी, जिसमें पॉलिटी को फॉर एग्जाम्पल 8 दिन दिए, मॉडर्न हिस्ट्री को 7 दिन दिए, इन्वायरमेंट से क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उसको 10 दिन दिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 4 दिन दिए, आर्ट एंड कल्चर को 6 दिन दिए, एशियन हिस्ट्री को भी उसके साथ इंक्लूड किया. तो इस तरह से आई यूज टू मेक माई डे वाइज शेड्यूल कि इस डेट से इस डेट मैं पॉलिटी करूंगी, इस डेट से इस डेट मैं मॉडर्न हिस्ट्री करूंगी, इस डेट से इस डेट ये करना है, और 45 days में मैं सारे सब्जेक्ट्स अपने खत्म करती थी. What used to happen was कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को आपने 7 दिन दिया, तो उन 7 दिन के आखिरी के 1 या 2 दिन एक्सक्लूसिवली मॉक टेस्ट के लिए होते हैं. बिकॉज आपने पॉलिटी पढ़ा तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने पॉलिटी कितना अच्छे से पढ़ा, या जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो क्या वो प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है. तो आप उसका पेपर दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, और अगर आपको वो अच्छा लगेगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आप सही से पढ़ रहे हो, आप फैक्ट को पढ़ रहे हो, तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाओगे. और अगर आपको लगा आपने सही से नहीं पढ़ा, तब भी आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करोगे, बिकॉज आपका डे वाइज शेड्यूल है. अगर आपने लेट किया, डिले किया, तो वो पूरा का पूरा आपका शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा. और प्रीलिम्स तो फिक्स्ड डेट है, तो प्रीलिम्स तो आप मूव कर नहीं पाओगे. तो आपको अपना रिविजन शेड्यूल्ड ही रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेकंड रिविजन के टाइम पे कि क्योंकि मेरा मान लो एक सब्जेक्ट कम प्रिपेयर हुआ, मॉक्स में कम मार्क्स आए, तो उसका सेकंड रिविजन और अच्छे से करना है. ओके, सो ये 45 days मेरा फर्स्ट रिविजन हो गया. देन नेक्स्ट 25 days में, 25 to 30 days में मैं सेकंड रिविजन करूंगी. अब क्योंकि फर्स्ट रिविजन ऑलवेज टेक मोर टाइम, बहुत सारी पेंडिंग चीजें भी होती हैं जो आपने नहीं की होती, और बहुत सारा आपको टाइम भी लगता है, नई चीजें होती हैं. तो फर्स्ट रिवीजन ज्यादा टाइम लेता है, सेकंड रिवीजन थोड़ा कम लेता है. अगर पहली बार पॉलिटी को पढ़ने में 7 दिन लगे फर्स्ट रिवीजन में, तो सेकंड बार में हो सकता है वो 4 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए. तो अकॉर्डिंगली सेकंड रिवीजन में मुझे 30 days दिया. सेम प्रोसेस अगेन, अगर पॉलिटी को 5 दिन दिया तो 4 दिन मैं उसमें से पढ़ूंगी, याद करूंगी, क्रैमिंग करूंगी, which will come to later कि prelims is about little bit cramming. तो और 1 दिन मैं अगेन मॉक के लिए रखूंगी. एंड आई शुड सी द इम्प्रूवमेंट. अगर फर्स्ट रिविजन में मेरे पॉलिटी में मार्क्स अराउंड 80-90 रह रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर में, तो सेकंड रिविजन में वो 90-100 होने चाहिए. एंड अल्टीमेटली मेरा टारगेट यही होगा कि 50 to 55% मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आते रहे. सी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. देर आर पीपल, देर आर टॉपर्स जिनके प्रीलिम्स में इससे कम मार्क्स आए थे मॉक टेस्ट पेपर में, एंड स्टिल उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ. वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. आप अगर उस थॉट प्रोसेस से जाना चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि इवन अगर मेरे टेस्ट पेपर में 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. अगर आप श्योरिटी से जाना चाह रहे हो, तो आई फील कि आपके मॉक टेस्ट में अराउंड 50 to 55% अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ साइड हो. सो दिस वॉज अबाउट कि आप उस टाइम को शेड्यूल कैसे करो. नेक्स्ट आता है कि मॉक टेस्ट पेपर देने कितने हैं. बिकॉज कुछ लोग 10 भी देते हैं, कुछ लोग 100 भी देते हैं. सो देखो,
when I used to take my prelims, I gave around 35 mock test papers, जिसमें से 25 सब्जेक्ट वाइज थे और 10 मॉक टेस्ट पेपर ओवरऑल मतलब कंबाइंड वाले थे. तो मेरे हिसाब से जो करंटली आपका प्रीलिम्स का ट्रेंड चल रहा है, जो थोड़ा सा और टफ हो गया है, आपको थोड़े टेस्ट पेपर्स और बढ़ाने चाहिए. एंड यू शुड नॉट फोकस ऑन वन कोचिंग, बिकॉज यूपीएससी में क्या होता है कि आपके माइंडसेट आपका बार बार चेंज होता है. वो कभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, कभी आपको किसी और सब्जेक्ट से पूछेंगे, कभी थोड़ा टफ कर देंगे, कभी ज़्यादा फैक्चुअल कर देंगे, कभी थोड़ा सब्जेक्टिव कर देंगे. तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि पेपर कैसा भी आए, आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको स्टेबिलिटी रखनी है अपनी पेपर में. तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि आप 2-3 रेप्यूटेड कोचिंग के पेपर ले लो और 2-3 कोचिंग के सॉल्व करो, ताकि आपका माइंड किसी एक कोचिंग पे जाके फिक्स नहीं हो कि अच्छा, जैसे अगर, क्योंकि होता क्या है ना कि मान लो आपने एक कोचिंग चूज किया, तो उसमें क्या होगा कि आपका माइंड उस कोचिंग वाले को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा कि देखो इस कोचिंग ने अगर ऑप्शन में ABCD लिखा है ना, तो हमेशा ABCD आंसर होगा. बट यूपीएससी तो ऐसा नहीं है. यूपीएससी का पेपर तो कोचिंग ने सेट नहीं किया है. तो आपको यूपीएससी के हिसाब से ट्रेन होना है. आपको ये देखना है कि आप डिफरेंट आपको आंसर्स पता हो, रेदर देन आप कोचिंग के माइंडसेट को समझो. तो ये दिस इज वन थिंग फ्रॉम माय साइड. अगेन नेक्स्ट इज कि जैसे ओके, आई हैव नोटेड सम पॉइंट्स जो मैं पहले बता देती हूँ आप लोग को. नेक्स्ट आता है CSAT के बारे में. सो CSAT हैज बिकम लिटिल टफर बिकॉज यू नो CSAT ऐसा हो गया है कि यूपीएससी इज ऑल्सो पोरिंग हार्डर क्वेश्चंस इन दैट. तो CSAT को लेके क्या करें, CSAT में कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक टेस्ट पेपर में और कैसे उसको सो करंटली आई वुड सजेस्ट कि अगेन आप नेक्स्ट 1-2 वीक्स में CSAT के 3-4 पेपर प्रैक्टिस कर लो. इफ यू थिंक कि आपके हर पेपर में कंसिस्टेंटली 100-110 प्लस रह रहे हैं, 100 प्लस आई वुड से, बिकॉज CSAT का कट ऑफ इज 66.5. अगर आपके 100 प्लस रह रहे हैं तो यू आर ऑन द सेफर साइड. तो इट मीन CSAT इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. बट इफ यू थिंक कि आपके मार्क्स जो हैं वो 70 से लेके 80-85 की रेंज में है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. बिकॉज अगर पेपर जरा सा और टफ हुआ तो आपका स्कोर गिर सकता है. तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. एंड आई हैव सीन टॉपर्स जिनके प्रीलिम GS में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट CSAT में वो 1-2 नंबर की वजह से रह गए. एंड इट फील्स वेरी बैड बिकॉज दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स. आप अच्छी प्रैक्टिस से उसको इजिली ला सकते हो, बस आपको CSAT को इग्नोर नहीं करना है. तो आप प्रैक्टिस कर लो. अगर आपके 70 to 80-85 रह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर हफ्ते एक पेपर प्रैक्टिस करो, पेपर भी और कुछ क्वेश्चंस भी, और देखो कि कैसे अच्छा होगा. एंड वन रिकमेंडेशन आई विल गिव इज प्लीज डू नॉट स्टिक योर सेल्फ कि मैं सिर्फ मैथ्स ही करूंगी या मैं सिर्फ इंग्लिश ही करूंगी. बिकॉज CSAT ऐसा हो गया है कि आपको दोनों अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे. हो सकता है मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे ना हो, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस ना हो, दैट इज फाइन. बट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अ सब्जेक्ट कि आई विल ओनली डू इंग्लिश, आई विल ओनली डू मैथमेटिक्स क्वेश्चंस. सो दिस इज समथिंग आई वुड नॉट रिकमेंड. नेक्स्ट वुड बी कि अगर आपके मार्क्स 60 से 75 की रेंज में रह रहे हैं, 60 to 70 रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है. ओके, आई थिंक दिया इज आस्किंग कि मैडम CSAT में हमें 110 स्कोर करना है. नहीं, CSAT का यूपीएससी में 66.6 कट ऑफ है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 66.6 नहीं लेके आना है, आपको सेफ साइड रहना है. तो दैट इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग कि मॉक टेस्ट पेपर में आपके अराउंड 80-85 प्लस आने चाहिए. अगर आप CSAT जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ इंजीनियर, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मैंने जब CSAT का पेपर प्रैक्टिस किया तो आई रियलाइज कि मेरे हमेशा 90 प्लस आते हैं, 90, 100, 110. सो आई वाज लाइक कि इट्स कंफर्टेबल, तो मुझे ज्यादा CSAT प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ा. बट अगेन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर उनके 16 मार्क्स आ रहे थे, 70 मार्क्स भी आए हैं, तो आई टोल्ड देम कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए हर हफ्ते, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी जोन है.
अगर थोड़ा सा पेपर टफ हुआ और आप 66 से कम पे आ गए, चाहे 1 मार्क ही कम हुआ, पेपर तो क्लियर नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक आप वो रिस्क लेना चाहोगे. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, टू बी ऑन द सेफर साइड आपके मॉक टेस्ट में अराउंड 80+ रहने चाहिए. तो अकॉर्डिंगली आप सीसेट प्रैक्टिस करिए. और सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, वो एक स्किल है, वो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का एक स्किल है जो आपका उतना ही अच्छा होन होगा जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे. तो अगर आपके इतने से रह रहे हैं तो ये कर लीजिए. अफसर इज आस्किंग कि मॉक्स कहाँ से लें. सी मॉक्स, देयर आर सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस. मैं विजन के करती थी, IS बाबा के करती थी, GS स्कोर के भी करती थी. एज आई टोल्ड यू, 3-4 कोचिंग, रेप्यूटेड कोचिंग के मिक्स कर लो. किसी एक कोचिंग पे स्टिक मत करो. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है. प्लस जैसे मैंने बोला अच्छी कोचिंग, तो अच्छी कोचिंग कैसे पता चलता है? अच्छी कोचिंग तब पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये वाली कोचिंग के क्वेश्चंस बहुत हद तक यूपीएससी क्वेश्चन से सिमिलर हैं. वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, आपको इंट्यूशन आ जाता है कि अच्छा, मैंने यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस किए, तो ये वाली कोचिंग के क्वेश्चंस भी बहुत हद तक इससे सिमिलर हैं. तो इसका मतलब ये कोचिंग की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ. अगेन सी, ये सब प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप अल्टीमेटली, क्या मकसद है हम लोगों का? अल्टीमेटली हम लोग का मकसद है कि हम जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो हमें कुछ भी बहुत नया नहीं लगे. हमें लगे कि अरे ये तो रेगुलर टेस्ट सीरीज का पेपर है, ये तो रेगुलर सीसैट का पेपर है, ये तो रेगुलर पेन से ही हम पेपर दे रहे हैं, रेगुलर कपड़ों में ही बैठ कर दे रहे हैं. तो वो न्यू वाली जब फीलिंग आती है तो उससे स्ट्रेस आता है, उससे आपको नर्वसनेस आती है. तो आपको वो अवॉइड करना है. बिकॉज आपका अगर प्रिपरेशन है तो आपको चीजें रेगुलर बनानी है. Whenever I used to go to the paper, तो मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ नहीं है, एक नया टेस्ट सीरीज का पेपर है, एक नया अच्छा पेपर है, मजा आएगा. अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे ना, तो पेपर में जाके कभी स्ट्रेस आउट नहीं होगे कि ओ शिट, ये पेपर कैसा आ गया, मैंने तो ऐसा प्रिपेयर ही नहीं किया. आप ऐसे सोचो कि नहीं, ये कोचिंग का पेपर है, बहुत अच्छी किसी कोचिंग का है, मजा आएगा पेपर सॉल्व करने में. सो गो विद दैट माइंडसेट. अपनी वही नॉर्मल टी शर्ट सूट पहन के जाओ जो आप रेगुलरली पहनते हो, वही नॉर्मल घिसा हुआ पेन लेके जाओ. घिसा हुआ एज इन ये नहीं कि खराब हो जाए, घिसा हुआ एज इन ये नहीं कि सब कुछ नया नया उठा के लेके जा रहे हो. ये सब जो साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना, ये भी बहुत इफेक्ट करती हैं. ये आप रेगुलरली देखोगे. इट एटलीस्ट यूज टू हेल्प मी अ लॉट. अगर मैं अपना पेपर का माहौल भी वैसा ही बनाती थी जैसा मैं घर पे रखती हूँ, तो मेरा पेपर बहुत इजीली स्ट्रेस फ्री जाता था. सो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स अगेन फ्रॉम माई साइड. आई होप इट हेल्प्स फ्यू ऑफ यू. देन कम्स की मॉक टेस्ट पेपर फुल कितने देने चाहिए और कंबाइंड कितने देने चाहिए. जैसा मैंने बोला कि जब आपका फर्स्ट 2 रिविजन हो रही होती हैं, तब आप सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दो. उससे आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ पता चलेगी कि आपके कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन से. और सबसे अच्छी बात क्या पता चलेगी कि आप कौन से सब्जेक्ट में जब गेस वर्क करते हो तो वो ज्यादा सही रहता है. जैसे मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं साइंस एंड टेक में गेस वर्क करती थी तो मेरा बहुत अच्छा जाता था, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वैसा है, आपका थॉट प्रोसेस वैसा. लेकिन अगर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में गेस वर्क करती थी तो मेरा हमेशा गलत जाता था. तो ये मैंने अपना पेपर में भी डाला कि अगर मुझे गेस वर्क करना है, अगर मुझे एलिमिनेशन करना है, 50-50 करना है, तो मैं कोशिश करती थी मैं उस जोन में करूं जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है. क्योंकि जब आप गेस वर्क भी कर रहे होते हैं ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो. गेस वर्क क्या है? गेस वर्क इज नथिंग बट आप अपना जो बाकी का इंफॉर्मेशन है, जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसको उस क्वेश्चन में कंसोलिडेट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप एलिमिनेट करते हो, अगर उस क्वेश्चन का आपको सही आंसर पता होना चाहिए तो आपको एक फैक्ट याद रखना है. बट अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो आपको बाकी 3 पता होने चाहिए कि क्यों गलत है. तो ये ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आ जाएगा. जो आपने इतना पढ़ा है, आपने इतना किया है, वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ, ये मैंने ये पढ़ा, ये मैंने मैंने ये फैक्ट भी पढ़ा हुआ है. आपको बहुत बार पढ़ते हुए लगेगा कि यार ये तो यूपीएससी क्यों ही पूछेगा, बट नहीं, मे बी कहीं वो आपको एलिमिनेशन में काम आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन गेन करना जो हम प्रीलिम्स में बोलते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो, वो इसलिए बोलते हैं. सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज कि
जैसे कुछ चीजें एलिमिनेशन में आपको दिमाग भी चलाना है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे आपको पूछा जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक ट्रेन। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछता है, बट पूछते हैं। मेरे टाइम पे आई रिमेम्बर, मेरे जो भी सेट था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था, 1500 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, वो कुछ आई स्टिल डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, कुछ डिस्टेंस पे था प्लैनेट्स के। तो अगर आपको पूछा जाए कि वंदे भारत कितने का प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि ये 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है क्या, सो आपको येस और नो में बताना है, मतलब इज दिस ऑप्शन करेक्ट और नॉट। तो अब सोचो, एक ट्रेन 1100, अगर आपको नहीं मालूम इस क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल नहीं मालूम, बट आप ये सोचो कि क्या एक ट्रेन 1100 करोड़ का हो सकता है इंडिया में? नहीं हो सकता। हम इतने वंदे भारत कैसे लेके आते अगर 1100 करोड़ का होता? तो आप उसको नो करोगे कि यार ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर जैसे वो लिखा था 11 करोड़, अब आपको पता है कि 11 करोड़ में भी ट्रेन नहीं बनेगा वंदे भारत जैसा, तो वो अराउंड 110-120 करोड़ का है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें कनेक्ट करनी है। ये आप तब कनेक्ट करोगे जब आप पढ़ते पढ़ते चीजों को अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्यों फैक्ट ऐसा है, क्यों इसने ये फैक्ट में ये बोला, क्यों ये चीजें याद रखनी है, ये नहीं याद रखनी। तो ये वाला हो गया। अभी जल्दी से करंट अफेयर्स पे आते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग। सो करंट अफेयर्स को कैसे करें? सी, पहला क्वेश्चन होता है, मैडम क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें? अभी प्लीज मत छोड़ना, बिकॉज आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है। और मेंस के लिए आपको उस वक्त के ये सारे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो करंट अफेयर्स में आप अभी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत छोड़िएगा, बिकॉज अभी 4 महीने पड़े हैं प्रीलिम्स में। आप मे बी 2-3 महीने बाद थोड़ा कम कर सकते हो, बट अभी आप रेगुलरली 1-1.5 घंटा अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। नेक्स्ट इज कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे करें। तो एक तो जब भी आपने, आई होप कि आपने जब पिछली ये कमिंग 6-7 मंथ्स जब करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, तो या तो आपने नोट्स बनाए होंगे या आपने कोई बुकलेट फॉलो की होगी। जैसे मैं जब भी एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मैं उस मंथ के एंड में एक बुकलेट लेके आती थी उसको पढ़ने के लिए। उससे क्या होता था, क्योंकि मैं खुद के करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाती थी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट एंड एवरीथिंग। सो मैं बुकलेट लेके आती थी, उसमें सब कंसोलिडेटेड मिलता था, और उसको खूब 2 बार रिवाइज करती थी, रट्टा मारती थी, फैक्ट्स को समझती थी, न्यूज क्या आ रहा है। तो वो मंथली बुकलेट मैं बहुत सिंसियरली पढ़ती थी। उसके बाद जब ये फेब्रवरी का टाइम आ जाता था, उसके बाद मैं करंट अफेयर की वो मंथली बुकलेट छोड़ देती थी। मार्च से मैं पीटी वगैरह जो आता है, जो प्रीलिम स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड आती हैं बुकलेट्स, मैं उसको फॉलो करना शुरू कर देती थी। अब होता क्या है कि जब आपने वो बुकलेट्स मंथली वाली अच्छी से पढ़ी होंगी ना, तो वो पीटी वगैरह बहुत इजीली आपसे हो जाएंगी, बहुत इजीली। लेकिन अगर आपने फिर भी अगर नहीं पढ़ी है, ऐसा अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक कुछ खास नहीं किया है, तो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि अभी आप फिर प्रीलिम्स का अपना स्टडी आवर बढ़ा दो। मतलब आप 2 महीने मत तैयारी करना, आप 3, 3.5, 4 महीने तैयारी करो। अगर आपने करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं किया, तो आप आज से ही वो मंथली बुकलेट ले लो, क्योंकि अभी शायद पीटी वगैरह तो नहीं आया होगा। तो मंथली बुकलेट ले लो, अभी जनवरी का ले लो, दिसंबर का ले लो, बिकॉज पीछे से जाओ अब आप, क्योंकि जितना ये वाले फेस का लोगे उतना ज्यादा काम आएगा। और उसको खूब अच्छे से पढ़ो, उसको रटो अच्छे से, और जो भी न्यूज़पेपर में आजकल करंट न्यूज आ रहा है उसको अच्छे से फॉलो अप करो। एंड अगेन, आप न्यूज़पेपर पूछ रहे हो भी, सी बासा, आई यूज टू फॉलो हिंदू न्यूज़पेपर, बट हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एनीथिंग इज फाइन। आप जो भी फॉलो करते आ रहे हो, इट्स गुड। अल्टीमेटली इस पर्पज इज टू लेट यू नो कि देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो प्लीज उसको वैसे कीजिए। और अगर अब आगे जो भी पीटी आएंगी उसको प्लीज बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इन्वायरमेंट की पीटी, आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे उस पीटी से डायरेक्टली 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, और आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए। सो ये था मेरी तरफ से प्रीलिम्स का थोड़ा सा रफ एंड वो जो आई थिंक इज नेसेसरी। बाकी आपके प्रीलिम स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए। एंड आई वुड रिकमेंड वन थिंग कि प्लीज थोड़ा प्रीलिम स्पेसिफिक रखिए, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर कैंडिडेट्स जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनके प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेरीज बहुत होंगी। तो आपको कुछ भी क्वेरी है कि आपने जो नहीं पढ़ा है उसको कैसे करना है, तो प्लीज गो हेड एंड आस्क। ओके,
किसी ने पूछा था कि इन्वायरमेंट के लिए क्या करें। सी, इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज आई सेड पीटी वगैरह। एंड नेक्स्ट इज एक बुकलेट जो आपने, आई होप एक स्टैंडर्ड बुक जो होता है, जैसे मैंने शंकर किया था उस टाइम पे, तो शंकर आज भी बहुत रेलिवेंट है। तो आई फील अगर आप वो कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपने इन्वायरमेंट का कुछ भी और सोर्स किया है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। वन मोर थिंग, इस टाइम पे आके अगर आपने हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड सोर्स कर लिया है, मान लो आपने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या किसी ने कुछ डीडी वासु पढ़ लिया, इस टाइम पे आके कोई भी मेजर नया बुक मत उठाना। इट्स बेटर आपने जितना किया है आप उसी को रिवाइज करो। ओके, सो कशिश पूछ रहे हैं कि एएमसी को कैसे कवर करें। एएमसी, आई होप आप एशियन मिडिवल कल्चर की बात कर रहे हो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द करंट लिंगो, बट एनीवेज आई एम अज्यूमिंग कि आप एशियन मिडिवल पूछ रहे हो। सी कशिश, मेरे टाइम पे यू कुड अफोर्ड कि आप, जैसे मैंने मिडिवल बहुत कम पढ़ा था, बेयर मिनिमम पढ़ा था, बिकॉज यू नो उस टाइम पे प्रीलिम्स थोड़ा रिलेटिवली ईजियर था। मेरे से नेक्स्ट ईयर से ही प्रीलिम्स इतना टफ हो गया ना कि आप बहुत कम अफोर्ड कर सकते हो कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ कि नहीं मैं तो कल्चर करूंगा नहीं या करूंगी नहीं, मैं मिडिवल करूंगा नहीं करूंगी नहीं। इससे आपका बहुत लॉस हो रहा है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 100% कोई सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ, थोड़ा बहुत उसको कर लो। और दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिवल। एशियंट और कल्चर तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया फॉलो किया था, 11th का एनसीईआरटी फॉलो किया था। एशियन के लिए भी 11th का ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किया था। बट कुछ लोग तमिलनाडु वाला बुक भी करते हैं। आपने जो भी सोर्स किया हो, इट्स वेल एंड गुड, आप उसको खूब अच्छे से रिवाइज करो। रिविजन इज द की राइट नाउ। कोई बहुत ज्यादा मेजर नया बुकलेट नहीं उठाना है। सो जो भी आपने किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो। प्रीलिम स्पेसिफिक, सी, दो चीजें होती हैं, एक तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो बाकी कुछ भी करने का फायदा नहीं है। तो प्रीलिम्स किसी भी हालत में क्लियर करना ही है। ओके, पहले से करंट नहीं पड़ा है, इतने टाइम में कैसे होगा? कन्हैया, इट्स फाइन। जैसा मैंने बोला, अगर आपने पहले से करंट नहीं पढ़ा है, आप स्ट्रेस मत लो। अभी भी 4 महीने हैं, ये बहुत सही टाइम है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने को। अगर आपने अब तक प्रीलिम्स का अच्छे से नहीं किया है तो आप एक काम करो, आज ही मार्केट में जाओ। दिसंबर जस्ट गॉट ओवर, दिसंबर का बुकलेट आ गया होगा। दिसंबर का मंथली बुकलेट उठा लो, नवंबर का बुकलेट उठा लो, अक्टूबर का उठा लो। नेक्स्ट 10-15 डेज में ये तीनों बुकलेट बहुत अच्छे से कवर कर दो, बहुत अच्छे से। आई मीन अगर मैं आपको कोई रैंडम फैक्ट पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, तो आप कवर कर दो। तब तक नेक्स्ट मंथ का न्यूज़पेपर या उसका पीटी वगैरह आ जाएगा और कंटिन्यू हो जाओ। इतने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के टच में आ गए हो और आप कर लोगे। इकोनॉमी, रमेश सिंह, यस, रमेश सिंह बहुत अच्छा बुक है। मैंने शायद उसके लिए कोई और बुक किया था, इकोनॉमी के लिए श्रीराम किया था, श्रीराम। तो रमेश सिंह इज ऑल्सो वेरी गुड। अगेन आई सेड, श्रीराम ऐसा बुक नहीं है जिसको आप कैजुअली उठा के पढ़ सकते हो। रमेश सिंह इज ऑल्सो वेरी टफ। आपने रमेश सिंह किया है तो आप रमेश सिंह को अच्छे से रिवाइज करो, नो इशू। जो आपने पढ़ा है आप कॉन्फिडेंट रहो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है क्या? विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन इज सफिशिएंट। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, अगर जैसे आपने लास्ट अगस्त का जब पढ़ा होगा, तो अगस्त वाले इस वक्त प्रीलिम्स के पास आते आते आपको वो सब 4-5 बार फिर से रिवाइज करने हैं। इस चीज को मत भूलिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमने विजन का बुकलेट पढ़ लिया था लेकिन हमने रिवाइज ही नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का। आप जो इन 3-4 महीनों में रिवाइज कर दोगे ना 5-6 बार, वही आपके प्रीलिम्स के पेपर में काम आएगा, ये याद रखना। ओके, एक क्वेश्चन आई थिंक मेरे से मिस हो गया। एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है क्या? सी, एनसीईआरटी इस, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स कर ली हैं अभी, तो एनसीईआरटी आपको उतना काम नहीं आएगा, एक्सेप्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कल्चर। इन तीनों के एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। मैंने ज्योग्राफी का 90% प्रिपरेशन सिर्फ एनसीईआरटी से किया था, अपार्ट फ्रॉम मैप्स एंड एवरीथिंग, वो सेपरेट है, रिवर्स मैप्स एंड एवरीथिंग। बाकी जो कंटेंट का प्रिपरेशन था वो मेरा 90% ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ही आया था। सो ये है। हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक, पुष्पेंद्र, देयर इज नो सच थिंग एज बेस्ट बुक। जो आपको सूट कर जाए वो बेस्ट हो जाती है। मॉडर्न में मैंने आपका स्पेक्ट्रम किया था,
एशियंट में आई टोल्ड यू मैंने 11th का एनसीईआरटी किया था। मिडिवल मैंने बहुत बेयर मिनिमम नोट्स किए थे ऑनलाइन रैंडमली उठा के, और ये मैंने किया था। बाकी आपको जो ठीक लगे, मतलब अगर आपने कोई और भी बुक की है तो इट्स फाइन, टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैथ्स स्ट्रीम वालों का क्या करे? कुछ नहीं कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? आप अभी अपने प्रीलिम्स पे फोकस करो पहले। हाँ, एक चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कि मैथ्स में ना आपको टच नहीं लूज करना है अपने ऑप्शनल से, क्योंकि अभी 4 महीने हैं। अगर आप अभी सोच रहे हो अपने प्रीलिम्स का स्टार्ट करने का, तो आई वुड रेकमेंड कि 1 हफ्ते बाद या 2-4 दिनों बाद आप 2-2 घंटा मैथ्स को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ताकि वो आपके लिंक से नहीं छूटे। बिकॉज अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस भी क्लियर करना है। सी, यूपीएससी एक ऐसा प्रोसेस है, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ, कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स कर लिया, सिर्फ मेंस कर लिया। आपको प्रीलिम्स जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस भी क्लियर हो। तो आपको वो माइंड को ट्रेन करना है कि भाई दोनों फोकस है, करंट फोकस ये है बट इसको भी भूलना नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है जो आपको सूट करे। मेंस की प्रेपरेशन नहीं हुई है बट प्री दूं या नहीं दूं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। आई वुड स्टिल सजेस्ट, प्लीज ये सोच के कि मेंस का प्रेपरेशन नहीं हुआ है तो अगली बार प्रीलिम्स दूंगा, ये मत करना। मैं इस फेवर में नहीं हूं, आई एम श्योर बाकी लोग में भी होंगे। बिकॉज होता क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा चीजें टालते रहते हो, वो नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर नहीं होता है कभी। अगर आप सोच लो ना कि नहीं नहीं इस साल तो अच्छा नहीं हुआ है, नेक्स्ट साल ही, आप इस साल प्रीलिम्स दो। क्यों नहीं देना? अभी 4 महीने पड़े हैं प्रीलिम्स में। आप प्रीलिम्स भी कर सकते हो, आप मेंस का 1 महीना अभी आंसर राइटिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपने प्रीलिम्स का बहुत अच्छे से कर रखा है। अगर नहीं भी कर रखा तब भी मेंस के लिए आपको 3-4 महीने मिलेंगे। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्लीज इसको कैजुअली मत लेना, अपना प्रीलिम्स दीजिए, अच्छे से दीजिए। इवन अगर मेंस थोड़ा कम प्रिपेयर्ड है वो हो जाएगा। ओके, revise which NCERT subject is important. Okay, सुशांत, आई थिंक यू मिस्ड एनसीईआरटी में। आई टोल्ड कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियंट का ओल्ड एनसीईआरटी मैंने किया था, तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि आपको इनमें से क्या सूट करेगा। ओके, सो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो शुड वी एंड द लाइव, और अगर किसी के अभी भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पोस्ट इट। एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के लिए अगेन जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी के कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे ज्योग्राफी वगैरह। बाकी तो आप अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली है तो कोई इश्यू नहीं है। रोल ऑफ योजना एंड कुरुक्षेत्र, सी योजना और कुरुक्षेत्र मेरे हिसाब से थोड़ा मेंस में उनका ज्यादा रोल आएगा। और भी कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं लेकिन वो पेज वाइज होते हैं। जैसे योजना जब मैंने पढ़ी थी तो आई रिमेम्बर कि उसके कुछ चैप्टर्स थे, वो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आते हैं कि कौन से चैप्टर्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली 2-4 घंटा बैठ के उन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। पूरी की पूरी योजना या कुरुक्षेत्र का आई डोंट थिंक ज्यादा रोल रहेगा प्रीलिम्स के लिए। आई एम टॉकिंग स्पेशली हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर इज इनफ। सी दिया, आई थिंक आपको मिनिमम 1 साल के करंट अफेयर्स करने ही चाहिए। बिकॉज मैं अगेन मेरा पॉइंट वही है कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कम पढ़ लो, अल्टीमेट सबका ऑब्जेक्टिव एक है, प्रीलिम्स क्लियर करना। तो आप जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाओगे, आप चाहोगे कि आप कम से कम चांस लेके जाओ। ये नहीं कि आप प्रिपरेशन कम करिए और आप इस होप पे जा रहे हो कि नहीं पेपर इजी आ जाए, या पेपर उतने ही 4-5 महीनों के करंट अफेयर से आ जाएगा। बिकॉज अगर इतना इजी होता तो सब क्लियर कर जाएंगे, राइट? पेपर का टफनेस लेवल ही ये है कि कम लोग क्लियर करते हैं, बिकॉज कम सीट्स हैं। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन बिलो अब द एवरेज रखनी है, मतलब गुड रखना है। ये नहीं कि आप एवरेज प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है, आपको कम प्रिपेयर करके नहीं जाना है। तो मिनिमम 1 साल का प्लीज प्रिपेयर करके जाइए। ये कितना साल लगता है विशाल? यूपीएससी एक समंदर है, आप कितनी देर में क्रॉस करते हो
ये आपके ऊपर है। कुछ लोग 1 साल में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 2, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 6, कुछ 9। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दतता से उसको क्रॉस कर रहे हो, कितना हार्डवर्क डाल रहे हो, किस टाइम पे कैसे एक्ट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हो विद चेंजिंग पेपर्स। बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। बट वन थिंग, अगर आप बहुत सिंसियर हो और आप हार्ड वर्किंग हो तो यूपीएससी ज़रूर क्लियर होता है। मैडम हम मराठी से मीन्स लिख सकते हैं क्या? गणेश, मुझे मराठी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आई थिंक कुछ लैंग्वेज पेपर्स में लोकल में अलाउ करते हैं वो, जैसे पंजाबी हिंदी में अलाउ करते हैं, पंजाबी में भी अलाउ करते हैं, तो आई एम श्योर मराठी में भी करते होंगे। बट आप प्लीज फिर भी आई सजेस्ट आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिए, वो एक लिस्ट दिया होता है लैंग्वेजेस का। अच्छा, 2024 जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप, पहले अभी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, अपनी एनसीआर बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली हर महीने पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर भी पढ़िए, फिर बेसिक बुक्स को पढ़िए और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में जाके आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपका एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मैं 11th में हूँ, मैं मैथ्स स्ट्रीम से हूँ, क्या करूँ आईएएस बनने के लिए? फिलहाल तो आप अपनी 11th कीजिए बिकॉज ये जो स्कूल की पढ़ाई होती है, कॉलेज की पढ़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप इसको स्किप करके सीधा यूपीएससी का पढ़ लोगे। जो टॉपर्स हैं, बहुत अच्छे टॉपर्स हैं जिन्होंने इस टाइम पे पढ़ा है, वो इस पढ़ाई में भी बहुत सिंसियर थे। अगर आप उनके मार्क्स देखोगे तो उनके 11th 12th कॉलेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो आप पहले इस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, यूपीएससी फिर अपने आप, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट रहे तो अपने आप वो भी फॉल इनटू प्लेस हो जाए। टेंशन हो रहा है मैम, ओके, आई थिंक ये हम क्वेश्चन जरूर एड्रेस करेंगे अनुराग। सबको होता है, सबको होता है, डेली डाउट आता है कि नहीं होगा, पक्का से नहीं होगा, क्यों होगा, हमारा क्यों होगा, बाकियों का होगा, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, काश 1 साल और मिल जाता, काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता। बट अनुराग मैं एक चीज बोलूंगी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि अभी भी 4 महीने हैं। ये 4 महीनों में तुम चाहो तो प्रीलिम्स को लिटरली इतना अच्छे से कर सकते हो कि तुम्हारा श्योरिटी से प्रीलिम्स होगा। बट उसके लिए तुम्हें एक सर्टेन डेडिकेशन चाहिए कि तुम रोज, जैसे मैंने पहले अपने सेशन में बताया, कि रोज रिवाइज कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स ढूंढ रहे हो। मेरा पेपर देने के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता था। मैं कभी ये नहीं देखती थी कि अरे वाह मेरे मार्क्स कितने अच्छे आ गए मॉक में, या कितना मैं अच्छा कर रही हूँ। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन होता था कि मेरी गलती क्या है इसमें, इस पेपर में। क्योंकि जितनी आप गलती पहचानोगे, जितनी गलतियों को रियलाइज करोगे, उतनी कम गलतियां पेपर में जाके करोगे। तो आपको वही करना है। तो अभी 4 महीने जिन लोगों को इस साल प्रीलिम्स देना है, सिंसेरिटी से देना है, आपके मिनिमम स्टडी आवर्स बढ़ाइए। जो लोग आप लग रहा है कि आप 4-5 घंटा निकाल के अभी प्रीलिम्स निकाल लोगे, आई एम सॉरी, टफ होता है। इस टाइम पे आके जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग डेली कॉलेज करते हैं, कुछ भी है, वो लोग भी अपने आवर्स बढ़ाते हैं। सो आप लोगों को भी, क्योंकि अब प्रीलिम्स पास आ रहा है, पेपर पास आ रहा है, तो आपको अपने स्टडी आवर्स बहुत बढ़ाने होंगे। आप 10-12 आवर्स पढ़िए, डेडिकेशन से पढ़िए, अपना शेड्यूल चेंज कीजिए, अपनी बॉडी को और एक्टिव कीजिए, तो आपका जरूर होगा प्रीलिम्स। प्लीज सेव दिस लाइव सेशन। ओके, कैन somebody टेल मी हाउ टू सेव दिस लाइव सेशन? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं नीचे। ओके, विल टेक 2 more क्वेश्चंस। क्लास 12 में है मैम, अभी से क्या करें? विशाल, एज आई सेड, क्लास 12 में हो, पहले बोर्ड के पेपर्स अच्छे से दो, वो क्लियर करो, उसके बाद यूपीएससी का सोचना। अभी अपना करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ो, बट अदरवाइज अपना भी यही करो। सुशांत, इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर करती है या नहीं? इंटरव्यू में लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज चूज करनी हो आप कर सकते हो। बट अगेन एक जो ट्रुथ है वो यही है कि अगर आप इंग्लिश करते हो तो वो एक आपका रहता है, क्योंकि वो आपको इंग्लिश के बेसिस पे थोड़ा बहुत जज जरूर करेंगे। बिकॉज होता क्या ना कि मोस्ट ऑफ द लेटर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश का जरूरत भी पड़ता है। बट स्टिल आप इंटरव्यू में अपना नेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो एंड आप वो कर सकते हो। मैम, डू यू हैव एनी यूट्यूब चैनल? आई एम सॉरी कुश, आई डोंट हैव एनी यूट्यूब चैनल। आई होप मैंने आपको हेल्प किया हो इससे। अगर आपको फिर से लगेगा तो वी कैन गेट ज्वाइंड अगेन नियर द प्रीलिम्स 2 months बिफोर, 1 month बिफोर।
आई एम हैप्पी टू मुझे भी अच्छा लगता है एस्पिरेंट्स को बताना। डेली शेड्यूल में एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इसी में थे, 3-4 साल पहले मैं इसी जोन में थी। बट अगर इस टाइम पे मैं हेल्प कर पाऊँ आप लोगों को, आई नो ये बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रिपरेशन होता है, तो अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो इट्स गुड। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने आप लोग को हेल्प किया। सो आई थिंक अभी विल क्लोज द सेशन। ओके, सो ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। प्रियान बोल रहे हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होता, क्या करूं? प्रियान, जो आपके साथ हो रहा है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आई विल सजेस्ट कि आप पहले अपनी गलतियां रियलाइज करो। आई एम श्योर जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ थिंग्स होगा कि आपने क्या प्रिपेयर नहीं किया था पिछले प्रीलिम्स में, क्यों नहीं किया था, और क्या आपने करंट अफेयर्स कम प्रिपेयर किया था, क्या आपने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं किया था, क्या आपने मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए थे। आपको खुद आंसर मिलेगा कि आपका प्रीलिम्स क्यों क्लियर नहीं हुआ। जब भी आपका कोई पेपर क्लियर नहीं होता है, आप प्लीज अपने साथ बैठिए और अपनी मिस्टेक्स रियलाइज कीजिए और उसको करेक्ट कीजिए। अगर आपका लास्ट बार से नहीं हो रहा है लेकिन आपके पास स्टिल वो एक एक्सपीरियंस है पेपर का, तो आप अभी भी 4 महीने हैं, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो प्लीज उस एक्सपीरियंस को यूज कीजिए एंड उस पेपर को अच्छे से कीजिए। सो थैंक यू गाइस। आई थिंक हम लोग काफी ज्यादा आपके साथ रहे हैं। आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छा करो, आप सबका प्रीलिम्स क्लियर हो एंड आप मेंस के लिए बैठो एंड होपफुली यू गेट द सर्विस ऑफ योर चॉइस एंड विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट। बाकी भी अगर आपके कभी और क्वेश्चंस रहेंगे तो विल डेफिनेटली डिस्कस। आई एम सॉरी अगर मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ऑल द वेरी बेस्ट। I'll save the live.